let us say the penicillin, okay, which is being treated for the gram-positive organism. If the patient is having a gram-positive organisms infection, I am injecting the penicillin to that particular patient, and I want to find out that the particular antibiotic is dissolved at a particular time or not. Second, after what time it is being eliminated from the body. For that reason, I have taken some different samples. First sample at 0 minutes where I have not injected anything. Second sample I have taken after 15 minutes of injection, then 30, then 45 minutes, then 60 minutes, then 125 minutes, and then lastly at 24 hours. Okay, so basically I have a different 7 samples here. Okay, so label is 0 minutes, 50, 30, 45, 60, 120 and 24 hours. Clear with this? Everyone? Yes, Here ma'am. my sample is known, that is penicillin. So I have a data from the pharmacopoeia that what should be the dissolution time for penicillin. Let us say the dissolution time given in pharmacopoeia is 60 minutes. It means at 60 minutes plus or minus something, my whole penicillin concentration which I have injected in the patient should be present in the serum sample. Yes or no? Am I right? Yes, ma'am. So अगर मैंने इंजेक्ट किया है पेनिसिलिन विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.6 IU per ml, सो इसका मतलब जैसे ही मैंने इंजेक्शन किया at a particular time the concentration will be getting into the serum sample, and at 60 minutes पूरा का पूरा 0.6 IU per ml penicillin should be dissolved in my serum. So जब भी मैं 60 मिनट्स पे सैंपल कलेक्ट करती हूँ पर्टिकुलर पेशेंट से, उसके सीरम में मुझे अप्रोक्सीमेटली 1.6 IU पर ml पेनिसिलिन मिलना चाहिए. बराबर है? Yes, ma'am. यस. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट हमको क्या फाइंड आउट करना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड्स है और हमारे पास ये 7 सैंपल्स है. हमको ये फाइंड आउट करना है कि पहले तो जो पेनिसिलिन मैंने इंजेक्ट किया है वो फार्माकोपिया से डिसोल्यूशन टाइम मैच करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है. इफ इट इज 60 मिनट्स आई एम गेटिंग 60 मिनट्स पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनिसिलिन और नॉट. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एम. सेकेंड एम, मुझे एग्जाम में सिर्फ 2 ही अननोन सैंपल मिलने वाले हैं. ठीक है, जिसके ऊपर लेबल होगा कुछ तो मिनट्स या आवर्स. नहीं, एक मिनट, वो लेबल नहीं होगा, सॉरी. हाँ, तुमको एग्जाम में 2 सैंपल मिलेंगे जिसपे लेबल्स नहीं है मिनट्स के. तुमको इंटरप्रेट करने हैं वो कौन सी मिनट्स पे हो सकते हैं. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? No, ma'am. Can you explain again? ओके, तो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट कैसा करेंगे. मेरे पास स्टैंडर्ड है, 7 सैंपल्स है. ठीक है, मैं अगेन बायो ऐसे रन कर रही हूँ, मेरे स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रही हूँ और मुझे हर एक अननोन सैंपल के लिए एक एक वैल्यू मिल रहा है आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ. बराबर. लेट अस से जो इसमें एग्जांपल दिया है तुम्हारे में 0 मिनट्स पे तो ऑफ कोर्स मुझे कुछ नहीं मिलेगा. 15 मिनट्स पे मुझे मिल रहा है 0.8, नो 0.01. 30 मिनट्स पे 0.11, 45.3, 60.5, 120 मिनट्स 0.2 और 24 आवर में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है. ठीक है, आर यू एबल टू सी द रिजल्ट पेज हियर एवरीवन? ऑब्जर्वेशन टेबल दिख रहा है क्या सबको? Yes, ma'am. Ma'am, page number. लास्ट 76 पेज नंबर. ठीक है, आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ मुझे रिजल्ट मिल रहा है जो रिपोर्ट में लिखा है. अननोन 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का और 1 का.
ठीक है, ये रिजल्ट देख के मैं क्या इंटरप्रेट कर सकती हूँ, कोई बताएगा मुझे? इफ आई एम सेइंग इज 60 मिनट्स पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया, एंड मैंने जो इंजेक्ट किया था पेशेंट में इट वाज 0.5 IU पर ml. दिस इज माय प्रोटोकॉल. ठीक है, सो कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस रिजल्ट? So till 60 minutes, the drug is getting dissolved in the serum till 0.5 IU per ml, and then it starts getting eliminated. So the concentration is reducing, and Yes. at 24 hours, it is no concentration is present, no drug is present. So it means after 24 hours or maybe before that, the whole penicillin has been eliminated from the body. Yes, this should be your Yes. interpretation. Now you can say from unknown 6 that nearby 120 minutes after that, the concentration of penicillin is decreasing. Yes, it means it has started eliminating from the body. Exact time, of course, you have to find out. It is the approximate time. Yes. Now, in your exam, what you are going to get is only 2 unknown will be given. ठीक है, अगर अननोन पे कुछ लेबल नहीं किया है, नो मिनट्स इज रिटन ऑन द अननोन, अननोन 1 और अननोन 2 दिया है, तुमको क्या करना है, जैसे हम लोग ने बायो एसे किया है, कॉमन बायो एसे करना है, 2 प्लेट्स 6 स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड्स 1 स्टैंडर्ड रिपीट 2 अननोन. ठीक है, आफ्टर यू गेट द रिजल्ट you have to interpret that the particular unknown sample will be after elimination, before elimination or at the maximum distribution. समझ में आ रहा है? समझ में आ Yes. रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? No, ma'am. ठीक है, दो samples का फॉर कैसे? एग्जाम्पल अननोन 1 अननोन 2 दिया है. नाउ तुमको अगर बोला है कि अननोन 1 इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अननोन 2 इज एट द लेटर पॉइंट. ठीक है, सिर्फ इतना ही बताया है. लेटेस्ट से आफ्टर एक्सपेरिमेंट अननोन 1 का वैल्यू मुझे मिल रहा है, वो है 0.3 IU पर. अननोन 2 का मुझे मिल रहा है 0.5 IU पर ml. बराबर है? समझ रहा है क्या मुझे क्या बोल रही हूँ मैं? Yes, ma'am. And I am saying that injection was of 0.5 IU per ml. तुम्हारा interpretation क्या होगा? Again I am repeating the scenario. I have injected the patient 0.5 IU per ml penicillin. Unknown one, I have got the result as 0.3 IU per ml, which is a starting point. Unknown 2, I have got the result 0.5 IU per ml. What will be my interpretation with respect to timing? Yes. Unknown 2 shows complete dissolution, so it must be at 60 minutes. Yes. So it means the penicillin has been distributed in a blood sample according to the timing given in pharmacopoeia. बराबर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So second interpretation will be the whole amount of penicillin has been distributed at a particular given time. बराबर, बिकॉज 0.5 मैंने इंजेक्ट किया था, मुझे 0.5 मिल रहा है, या फिर अप्रोक्सीमेटली 0.5 मिल रहा है. यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड थिंग, अभी हम लोग को क्या करना है, अगर मेरा सैंपल लेटेस्ट से जो मुझे सैंपल मिला एग्जाम में, एक सैंपल में मुझे मिल रहा है अननोन 1 में 0.3 IU पर ml, एंड सेकेंड मुझे मिल रहा है लेटेस्ट से 0.1 IU per ml. What will be my interpretation? Ma'am, can you repeat last wala unit?
First is 0.3 IU per ml. Second is 0.1 IU per ml. What will be my interpretation? Again, first unknown is from the starting and second is from the ending. So ma'am, maybe in unknown 2 the elimination has already begun, so it is sample taken after 60 minutes. Yes. So the interpretation will be the sample is taken after 60 minutes, and for 0.3 you will write down the sample has started the distribution in the given serum. Yes. नाउ द एग्जाम में ये भी हो सकता है कि तुमको टाइमिंग दे दे कि फर्स्ट सैंपल ये टाइम पे लिया है, सेकंड सैंपल ये टाइम पे लिया है, तो तुमको क्या इंटरप्रेट करना है? अगर डिस्ट्रीब्यूशन टाइमिंग और कॉन्सेंट्रेशन मैच कर रहा है तो यू विल से दैट द पेनिसिलिन हैज बीन showing the result as per the pharmacopoeia as its distribution timing is 60 minutes. Clear with this? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes? Okay. Any doubt for this experiment? Ma'am, how do we perform this? Like only dissolution or bioassay we perform करना है? रिजोल्यूशन तो करना ही नहीं है ना बेटा यहाँ पे. अच्छा. रिजोल्यूशन का तो सिर्फ टाइम याद रखना है तुमको अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया. Okay. परफॉर्म बायो ऐसे ही करना है. 5 स्टैंडर्ड 7 सैंपल्स. एग्जाम में तुमको 5 स्टैंडर्ड्स बनाने बोलेंगे और सिर्फ 2 अननोन देंगे. समझा? तुमको सिर्फ डिसोल्यूशन टाइम याद रखना है पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स का. कौन से एंटीबायोटिक्स आ सकते हैं दैट आई लेट यू नो इन बिफोर द एग्जाम. Okay, ma'am. किसी को डाउट है? Okay. So I hope we have taken all the experiments. Practical experiments are over. I mean, only the explanation, of course. And your journal writing is also over. Yes? Anything else is remaining? No, ma'am. Okay. So we have Ma'am, completed with the hello. practicals also. Yes. मैम जर्नल में 2-3 एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए जगह नहीं है दोनों भी जर्नल में. पेजेस शॉर्ट हो रहे हैं. कौन से एक्सपेरिमेंट नहीं लिखे अभी तक? वो सीरम वाला एक नहीं लिखा है, वो लास्ट वाला, उसके लिए पेजेस नहीं बचे. और नेक्स्ट मतलब पेपर आपके जर्नल में भी 2 एक्सपेरिमेंट लिखना बाकी है, पेजेस नहीं है मैम. तो ये तुमने जब भी मैंने बोला था कंप्लीट करो आज के आज अपलोड करो तभी तो नहीं बोला? मैम तभी तो किया नहीं था, उसके 2-3 दिन बाद किया तो फिर मैम तभी देखा मैंने. तो अभी नया जर्नल ले लो और क्या कर सकते हैं, या फिर पेजेस लगाओ पीछे. मैम ये जो आपने एक्सपेरिमेंट्स बताए ये भी लिखना पड़ेगा ना, तो नया जर्नल ले लूँ क्या? मैंने ऑलरेडी बोला था लिखने के लिए बेटा, तूने लिखा नहीं अभी तक? नहीं, लास्ट का 2 एक्सपेरिमेंट बाकी है मेरा, तो उसमें से ही है रहेगा तो फिर मैं पेजेस स्टिक कर दूंगी. पेजेस टिक कर सकती है क्या देख, क्योंकि 20 पेजेस होंगे शायद ये, तो उतने कर सकती है क्या देख, नहीं तो फिर नया जर्नल ले ले 100 पेज का, तो दोनों जर्नल का जो बच्चा है वो उसमें लिख देना. अच्छा, फिर दोनों जर्नल का लिख दूं ना एक साथ, एक वो जर्नल में, हाँ. क्योंकि वो सीरम का भी एक बाकी है और इधर का भी 2 एक्सपेरिमेंट बाकी है. ठीक है. ठीक है मैम, चलेगा. ओके. चलो, एनी अदर डाउट? No, ma'am.
मैम तो अभी पेपर 2 का जो थियोरी है वो बाकी है ना, मतलब। हाँ, बाकी सब हो गया ना, और सीबी सर का थोड़ा बच्चा रहेगा। हाँ मैम, और गंगाल सर का भी है। हाँ, वही ना, पेपर 2। प्रैक्टिकल का भी तो बाकी है ना, पेपर 2। हाँ, वही अभी देखते हैं कि मतलब इंडस्ट्री अलाउ करती है क्या जाने के लिए। हम लोग ने कॉल किया है लेकिन उनका अभी तक रिप्लाई आया नहीं है। सो देखते हैं क्या करना है। वैसे SYTY का तो एग्ज़ाम वो लोग ऑनलाइन ही ले रहे हैं। SYTY का सेम 2 एंड 5, सेम 2 नहीं, 3 एंड 5। सो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी उनका ऑनलाइन ही है। तो अभी तुम्हारा क्या डिसाइड होता है, लेट अस वेट एंड सी। मैम, सो 15 को जो बोला तो होगा क्या एग्जाम 15 को? नहीं, नहीं होगा। मैंने सिर्फ नहीं, 15 को तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होगा। आई थिंक तुम्हारा एग्ज़ाम जैन में ही जाएगा, क्योंकि Okay. 30 दिसंबर तक SY और TY का ख़त्म करने बोला यूनिवर्सिटी ने। तो अभी पार्ट 2 का तो अभी तो कुछ आया नहीं है, तो मुझे लग रहा है जैन में ही जाएगा शायद। मैम फिर प्रैक्टिकल सब मतलब परफॉर्म करने का कुछ है आइडिया नहीं हाँ कभी? मैम, वो कब होगा मैम? क्या परफॉर्म करने का, प्रैक्टिकल्स? यस हाँ मैम, मैम। प्रैक्टिकल। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, अभी यूनिवर्सिटी बोलेगी ओपन करो कॉलेज तो ये तो कर सकते हैं ना, गवर्नमेंट ने परमिशन तो देना चाहिए। और एनीवेज अगर तुम्हारा ये सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल्स नहीं भी हुआ ना परफॉर्म, तो जब भी कॉलेज शुरू होगा तो हमारा सारा प्रैक्टिकल्स हम ले लेंगे, इवन तो तुम्हारा एग्जाम भी अगर हो गया रहेगा तो भी। ठीक है, सो उसके लिए वरी मत करो कि तुम लोग को परफॉर्म नहीं करने मिलेगा। परफॉर्मेंस तो हम ले लेंगे, लेकिन अभी वो एग्जाम के पहले होता है कि एग्जाम के बाद होता है, दैट आई एम नॉट श्योर। ओके मैम। ठीक है, तो अगर एग्जाम के पहले परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो जैसे तुम्हारा तुम्हारा नहीं, तुम्हारे सीनियर्स का जैसे एग्जाम हो गया था ऑनलाइन, वैसे ही एग्जाम ले लेंगे, थियोरिटिकल एंड इंटरप्रिटेशन वगैरह। तो मैम ऑनलाइन में कैसे होगा प्रैक्टिकल? ऑनलाइन में हम लोग एक एक स्टूडेंट को बुलाएंगे और एक एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल पेपर होगा। वो हम लोग तुम लोग को टाइम टेबल देंगे, और डिपेंडिंग अपॉन अगर परफॉर्मेंस नहीं हुआ है तो तुमको थियोरिटिकल पार्ट का वाइवा होगा, एंड इंटरप्रिटेशन के लिए हम लोग तुमको रिजल्ट्स देंगे, तुमको उसको इंटरप्रेट करना है। जैसे अगर मैंने बोला कि ये ऑब्जर्वेशन टेबल है तो तुमको ग्राफ प्लॉट करना है और मुझे बताना है कि रिजल्ट क्या आएगा, ऐसा। ओके मैम। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन नाउ गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी। अभी गवर्नमेंट ने तो बीच में बोला था कि PG को बुला सकते हैं, लेकिन अभी वापस उन्होंने बोला कि नहीं बुला सकते 31 दिसंबर तक। तो अभी लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन जैन। ओके मैम। ठीक है, और मैंने वो केमिकल कंपोजिशन का स्ट्रक्चर्स ढूंढने बोला था, वो कितना तक पहुंचा है? हाँ मैम, मैम चाहिए। उसमें कुछ स्ट्रक्चर मिल नहीं रहे तो ब्लैंक तो छोड़ दिया है, दूसरे तो चलेगा? नहीं नहीं मिल रहे तो दूसरे वेबसाइट पे ढूंढ लो, उस अच्छा पे नहीं मिल ठीक हाँ रहे है। मैम, तो पबकेम में हमने तो। जगह छोड़ा है वहां मैम पर। जगह है छोड़ा है। दूसरे वेबसाइट पे भी, बट बहुत एक दो स्ट्रक्चर्स है जो। हाँ, तो एक दो स्ट्रक्चर्स नहीं मिल रहे तो ठीक है, लेकिन अगर ये पबकेम में नहीं मिल रहे तो दूसरी जगह पे ढूंढो, दूसरी जगह पे भी नहीं मिल रहे तो फिर ब्लैंक छोड़ दो। ओके मैम। मैम एक और डाउट था, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मतलब मेजरली उनके क्लासेस मेंशन किए हुए, जैसे ग्लाइकोसाइड्स, टर्पेनॉइड्स, तो उनके एग्जाम्पल डालने हैं या कुछ नहीं डालने हैं उसकी जगह नहीं, पे? उधर उधर कुछ मत डालो। जहाँ पे ओके सिर्फ मैम। क्लासेस का नाम है वो मत डालो, जहाँ पे मॉलिक्यूल का नाम है वो ही डालो। ओके मैम, ठीक है। हम्म। मैम ये स्ट्रक्चर्स का हम क्या करने वाले हैं? ये स्ट्रक्चर्स एक्चुअली मुझे चाहिए। एक तुम्हारा वो जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ASU वाला पार्ट है ना, वैसा एक प्रोजेक्ट के लिए हम लोग ढूंढ रहे थे कि कुछ मिलेगा तो इसके लिए हम लोग ने ये निकाल के रखा है। तो वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग ऑन दिस।
लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन कि इसके ऊपर कितना इंफॉर्मेशन अपन को मिल सकता है। ओके। ठीक है। और मैम श्रुति मैम ने बोला था फेब्रुवरी में इंटर्नशिप है, तो उसके लिए मैम ने बोला था रिज्यूम रेडी रखने के लिए, तो है हाँ, या तो नहीं? वो रेज्यूम रेडी है तो सब लोग यहाँ पे एक टीम्स पे ही बना दो रेज्यूम करके एक फोल्डर और उसमें अपलोड कर दो। ओके, बट तो मैम श्रुति मैम ने बोला था कि तुम लोग भी देखो तुम्हें कहीं पर मिल रहा है या नहीं। तो हाँ फिर पूछा है मैंने एक सर को, हाँ तो सर ने बोला है कि मतलब आ सकते हो, पर डिपेंड मतलब जैसे पेशेंट हो गए वो हिसाब से बता रही हूँ। हाँ, ठीक है। तो तुम लोग तुम्हारी तरफ से ट्राई करो कहीं मिल रहा है क्या। अभी ये जो तुम्हारा ट्रेनिंग होगा वो तो ऑफकोर्स तुम्हारा सेमेस्टर 3 के बाद ही होने वाला है। हाँ, तो जब भी सेमेस्टर ओके 3 का मैम। एग्जाम का डेट्स आ जाएगा तो उसके बाद ही तुम वहाँ पे डेट्स बता सकते हो, लेकिन पूछ के रखो अगर किसी का कहीं पहचान है तो, कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ओके मैम। ठीक है। हाँ मैम, ये इंटर्नशिप 2 महीने का रहेगा या 3 महीने का? 3 महीने का। 3 months you have to go। तो तुम्हारा ये एकेडमिक ईयर भी एक्सटेंड ही होने वाला है वैसे भी, क्योंकि हम लोग ने एनीवेज अगस्त में शुरू किया है ना। ठीक है, चलो ऑल ऑफ यू बाय। सीवी सर का या गांगल सर का लेक्चर का कुछ शेड्यूल आएगा तो वी विल लेट यू नो। ठीक है, तब तक जरा एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू कर दो, पढ़ाई शुरू करो। यस। मैम एग्जाम ऑनलाइन ही होगा फिर? वही तो मैं बोल रही हूँ ना बेटा, अभी तक कुछ पता नहीं है। अभी ये जब गवर्नमेंट बताएगी तभी, लेकिन मुझे तो लग रहा है थियोरिटिकल पार्ट तो शायद ऑनलाइन ही होगा। तो फिर मैम हम लोग उसका एमसीक्यू वगैरह जो प्रिपेयर किया है वो सब का स्टडी करें ना बस? हाँ, अभी वो तो शुरू करो। हाँ ओके मैम। ठीक है।